Hello students, welcome to the 7th lecture of relation and function. In the last class we discussed about the types of functions, such that we have discussed modulus function, we have discussed some square root and cube root functions, and we have discussed the reciprocal function as well. So now we are going to discuss first fractional part function. Fractional part function. Generally, it is denoted by f of x is equals to a curly bracket of x. ऐसे curly bracket दिया जाता है और x for any x fractional part of the symbol, generally the symbol denoted or denotes, symbol denote the fractional part or decimal part of x. For example, suppose 1.25, the fractional part of 1.25 is, who is the fractional part here? 1 is complete. Okay, we can write this is 1 plus 0.25. The fractional part of this is 0.25, or let's say 5.05 का fractional part, this is 0.05. okay, let's say 10.32 इसका fractional part, this is 0.32. okay, the fractional part of x, the symbol x is only take the fractional part of a number or the decimal part of a number. So clearly we can say the fractional part of a function, the fractional part of a number is always lies in between 0 and 1. okay, so we can say fractional part of x is always greater than equals to 0 and less than 1, greater than equals to 0 and less than 1. So what is the fractional part of 1? Only 1. This is, we can write 1.0. So this is nothing but 0. So fractional part is lies in between 0 and 1. It can be 0 but it cannot be 1. It can be 0 but it cannot be 1. okay, so another example, what is the fractional part of minus 0.2? The fractional part of minus 0.2 is not 0.2, it is actually 0.8. okay, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में हो, तो 1 माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, उसका पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट कर देंगे. ऐसे ऊपर में दिख रहा है कि 0.2 है, लेकिन उसको 1 माइनस 0.2 कर देना, दैट इज 0.8. So the fractional part of minus 0.2 is 0.8, or you can say the fractional part of minus 0.45 is simply as anything 0.45, 3.45, minus 3.45. इसका fractional part का 1 minus 0.45, that is 0.55. okay, that is. Or another example, minus 3.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर देखेंगे 1 माइनस 0.332 और कितना हो जाए 0.68 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.68. इसका फर्स्ट डोमेन रेंज देखते हैं. f of x इज इक्वल्स टू है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू, देखो x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. For every value of x, for every real number, the fractional part of x is well defined and it is in between 0 and 1. So domain is, we can say domain is the R for any real number. The set of real numbers is the domain of this function. And what is the range of these functions?
The range of this function is, we know that the fractional part of a function is lies in between 0 and 1. In between 0 and 1. So range मतलब उसका वो कितना तक विस्तार हुआ है, उसका पहुंच कहाँ तक है, ठीक है। तो उसकी पहुंच देखो 0 तक है। 0 उसको फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है, लेकिन 1 कभी नहीं हो सकता, और 1 से ज़्यादा तो सवाल ही नहीं, कोई चांस ही नहीं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन 2 हो या 5 हो। सो फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0, 1। 0 हो सकता है तो 0 में हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंड इट कैन नॉट बी 1, सो इन 1 वी कैन से ओपन ब्रैकेट। सो इट इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन इज बेसिकली, हम एक तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इज बेसिकली x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो x माइनस ग्रेटेड इंटीजर ऑफ x। सो वी कैन से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, f of x is equals to fractional part of x which is equals to x minus greatest integer of x। इसी हिसाब से हम एक दो एग्जांपल देखो। सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ तुम देखोगे 4.23, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, इसका बॉक्स x मीन्स 4.23 माइनस 4.23 का 4.23 का बॉक्स मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 4.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 4 होता है। तो 4.23 माइनस 4 विच इज 0.23। सो जनरली फ्रैक्शनल पार्ट इज डिफाइंड एज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज x माइनस बॉक्स x और स्टेप x। डोमेन होता है r, रेंज इज 0, 1। इसको नोट कर लो, हम इसका अभी ग्राफ बनाते हैं। So let us draw the graph of the fractional part functions। देखो डोमेन तो हमारा R है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेंज इज 0 to 1, we know that range is 0 to 1। So the graph of the fractional function is lies in between two lines, that is y is equals to 0 and y is equals to 1। What is y is equal to 0? y is equal to 0 एक लाइन है, पता है किस लाइन को y is equal to 0 वाला लाइन कहते हैं। y is equal to 0 इज बेसिकली तो x एक्सिस को कहा जाता है y is equal to 0, और y is equals to 1 इज बेसिकली a horizontal line or a line parallel to x axis and passes through the point 0, 1, passes through the point 0, 1। so ये अगर 0, 1 है, इसमें जो एक लाइन पास होगा हॉरिजेंटल पैरेलल, वो होगा y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन, ठीक है। तो हालांकि रेंज 0 to 1 है ना, तो इसका जो जितने भी लाइंस बनेगा ना, वो ये इस x एक्सिस और ये वाला लाइन के बीच में ही रहेगा। सो ये x इज इक्वल टू 0, दिस इज लेट्स से 1, 2, 3, -1, -2, ओके। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट की और एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज है कि fractional part of x is equals to x if it is lies in between 0 to 1। okay, let me write here, fractional part of x is equals to x if x is belongs to or x is in between 0 and 1। देखो तुम खुद ट्राई करो, 0.23 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.23, 0.53 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.53, 0.64 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.64। ओके, अगर कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसी का फ्रैक्शनल पार्ट वही होता है, ठीक है। तो इन बिटवीन 0 एंड 1 दिस इज ए लाइन, f ऑफ x इज इक्वल टू x वाला लाइन को ड्रॉ करोगे सिर्फ 0 to 1 तक। तो 0 to 1 तक ये f ऑफ x इज इक्वल टू x वाला लाइन है, जैसे 45 डिग्री। लेकिन जब 1 पहुंच जाएगा, ठीक है, जब 1 पहुंच जाएगा
दिस इज 1,0 अगेन देखो ये पास थ्रू 0,0 1,0 और यहाँ 0.5, 0.5, 0.6, 0.6, 0.9, 0.9 बट 1,0 तो यहाँ हम देंगे ओपन बॉल, यहाँ हम देंगे ओपन बॉल। अगेन यहाँ से भी वही सेम कहानी रिपीट होगा, 1.1 का भी 0.1 होगा, 1.5 का 0.5 होगा, तो इसी लाइन एग्जैक्टली वही लाइन, फिर एग्जैक्टली वही लाइन, फिर एग्जैक्टली वही लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही लाइन है, देखो थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं है मेरा ग्राफ, ओके नो प्रॉब्लम, -2 के लिए। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equals to fractional part of x. This is the graph of y is equal to fractional part of x. कुछ इसी तरीका का दिखता है, ये आपका y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस, ओके। सो इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सिग्नम फंक्शंस। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन, द सिग्नम फंक्शन is defined as, so f of x is equals to mod x by x, mod x by x if x is not equals to 0 and 0 if x is equals to 0. So now can you tell me, तो what is f of 0? तो 0 किससे एसोसिएट है, 0 किससे, मतलब 0 किस नंबर से एसोसिएटेड है ये, तो यहाँ लिखा है f of x is equals to 0 if x is equals to 0. What does this mean? Then 0 is associated to 0, so we can say f of 0 is equals to 0. f of 0 is equals to 0. So now can you tell me what is f of 1? f of 1 is simple, इन दोनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये 1 जो है इज इक्वल्स टू 0 है कि नॉट इक्वल टू 0 है, इन दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए, ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स f of 1, f of x is equals to mod x by x if x is not equals to 0, so we can write this is 1 का mod by 1, 1 का mod कितना है 1 by 1, that is 1, so f of 1 is equals to 1. And what is f of 2, my student? f of 2 is 2 का modulus by 2, क्योंकि 2 is also not equals to 0, so it will be 2 का modulus 2 by 2 which is equals to also 1. What is the value of f of minus 3? f of minus 3, f of minus 3 is simple, minus 3 is also not equals to 0, so ये भी minus 3 का mod by minus 3, और minus 3 का modulus कितना है, obviously it is 3, modulus always positive, तो minus 3 by minus 3 that is negative of 1, that is negative of 1. So we can say, इसको थोड़ा सा हम और डिफाइन करते हैं, हमें मॉडुलस फंक्शन तो पता है, we know that the modulus function is mod x is equals to x if x is greater than 0, greater than equals to 0, and negative of x if x is less than 0, if x is less than 0. इसको हमें दो भाग से फिर डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से अभी, तो f of x is equals to mod x by x है, फर्स्ट 3 टू केस लेंगे, फॉर x is greater than 0, x is greater than 0, फॉर x is greater than 0 mod x is equals to क्या होगा, mod x is equals to x if x is greater than 0. जब ग्रेटर देन इक्वल टू में होगा, सिर्फ ग्रेटर देन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड mod x is equals to negative of x if x is less than 0. So we can say if x is greater than, for the first case for x is greater than 0 mod x is equals to x, so we can say this is x by x, this is 1, okay, and 0 for x is equals to 0, simple. And what is the for x is less than 0, if x is less than 0 and x is negative, if then mod x is equals to minus of x, so we can write minus x by x, so what is this, negative of 1 for x is less than 0. So modulus function is can be redefined as,
it is redefined as f of x is equals to 1 for x is greater than 0, 0 for x is equals to 0 and negative 1 for x is less than 0. Okay, for three different case we have three different results. तो सिंपल अभी आंख मूंद के तुम जो भी पूछा गया है तुम आराम से आंसर दे सकते हो. f of 2 पॉजिटिव है 1, f of 3 1, f of 5 1, f of 6 1, f of -3 -1, f of -4 -1, f of 0 0. ओके, सो अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. वेरी सिंपल ग्राफ, सो डोंट वरी अबाउट इट. Let's do the graph of this function. तो ग्राफ की तीन हिस्सा है, दो हिस्सा है जनरली, एक ग्रेटर देन 0 के लिए और एक लेस देन 0 के लिए. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. देखो इसमें से आपको ग्राफ का बेसिक ये जानना है कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x लेस देन 0 का मतलब क्या है, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, y लेस देन 0 का मतलब क्या है. x ग्रेटर देन 0 का यही सीधा सीधा मतलब है कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. तुम इसको किसी भी तरीके से सोच सकते हो. देखो यू कैन से आप क्वाड्रेंट भी पढ़े हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड इज नेगेटिव माइनस माइनस एंड फोर्थ इज योर प्लस माइनस. यहीं से भी ये जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट और जो सेकंड वाला होता है y कोऑर्डिनेट. तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि दिस इज द लाइन इज लाइज ऑन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये दोनों में क्वाड्रेंट में होना चाहिए. सिंपल, यहाँ ये आपका x एक्सिस होता है, ऐसे भी सोच सकते, मतलब यहाँ x पॉजिटिव और यहाँ इस साइड x नेगेटिव. y एक्सिस में इस लाइन में, इस पूरा लाइन में x होता है 0, x होता है 0. मतलब ये पता है x कोऑर्डिनेट यहाँ 0. यहीं से अगर राइट साइड मूव करोगे तो x इज ग्रेटर देन 0 और वैल्यू x का बढ़ता जाएगा, इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. यहाँ से तुम लेफ्ट साइड जाओगे तो द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेजुअली नेगेटिव एंड इट्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. तो यहाँ होता है पॉजिटिव और यहाँ होता है नेगेटिव x की वैल्यू. देन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन y इज इक्वल्स टू 1 है. हम कुछ पॉइंट लेते हैं कि सपोज 1, अगर x की वैल्यू 1 हुआ तो कुछ पॉइंट हम लिखते हैं विच इज पासिंग थ्रू वेयर द ग्राफ इज पासिंग थ्रू दोस पॉइंट्स. तो x की वैल्यू अगर 1 होगा, x की वैल्यू 1 होगा तो y भी 1 होगा. x की वैल्यू अगर 2 होगा तो y तो पॉजिटिव है ना, ये भी 1 होगा. 3 है 1, 0 पे 0 और कुछ पॉइंट्स, -1 पे -1, -2 पे -1, -3 पे -1. सो कुछ पॉइंट देते हैं 0,0, ये पॉइंट है. 1 पे 1 आएगा, 1 पे 1, 2 पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है, 4 पे भी 1 है, सब में 1 है. जब -1 पे -1 तो यहाँ -2 पे भी -1, -3 पे भी -1. तो ये बेसिकली देखो x की वैल्यू अगर 0.1 भी होगा ना तो 0.1 भी पॉजिटिव है. तो f ऑफ 0.1, सो f ऑफ 0.1 इज ऑल्सो 1, f ऑफ 0.2 इज ऑल्सो 1. सो यहाँ भी 1 वाला केस है. तो दिस इज ए लाइन और ये भी एक ऐसे लाइन होगा. यहाँ पे होगा ओपन बॉल का मतलब है f ऑफ 0 इज बेसिकली 0 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1. और यहाँ भी ओपन बॉल होगा क्योंकि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू नॉट -1 इज. सो ये बेसिकली y इज इक्वल्स टू 1 का आधा लाइन है. y इज इक्वल टू 1 का अगर लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो सिंपल y इज इक्वल टू 1, ये वाला लाइन y इज इक्वल्स टू 1 वाला लाइन, ये y इज इक्वल टू -1 वाला लाइन. y इज इक्वल 1 वाला लाइन का आधा और -1 लाइन वाला का आधा.
ये आपका सिग्नम फंक्शन हो गया। यहाँ एक बॉल डालोगे, यहाँ भी एक बॉल डालोगे, खत्म कहानी। ठीक है, सो दिस इज 0 0 x एक्सिस x डैश y y डैश। ओके, नोट इट डाउन। Then we are going to discuss exponential function. It is very important function, exponential function. हर क्लास में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कैलकुलस में ये आता ही रहेगा हमेशा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। A function f of x, a function f of x that associates x belongs to R to a to the power x, where a is greater than 0 and a is not equals to 1 is called an exponential, function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो x किससे एसोसिएटेड है? a टू द पावर x से। किससे? a टू द पावर x। सो बेसिकली f of x is equals to a to the power x, okay, where a is greater than 0, पॉजिटिव, ओके, a पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम दो केस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट केस 1 फॉर a इज ग्रेटर देन 0, सॉरी a इज ग्रेटर देन 0 तो है, a इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 एक केस है और लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 एक केस है। मतलब फास्ट तो यही हमें पता है कि ए जो है वो 0 से बड़ा है और 1 नहीं है। 0 से बड़ा और 1 नहीं, मतलब वो अगर 1 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 से छोटा, और 0 से ये 0 है, ओके, ये 1 है। 1 से बड़ा नहीं तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो फर्स्ट केस है ए ग्रेटर देन 1। फर्स्ट केस है ए आपका जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इस केस में y इज इक्वल्स टू ए, जो f ऑफ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, where a इज ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पहली बात नोटिस करने वाली बात ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये तो नंबर हमें पता है कि a मतलब सपोज मान लो 2 है, मैंने फॉर एग्जांपल वी कैन से कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 टू द x है। सोच सकते हो कुछ टाइम के लिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x कितना होगा? a टू द 0, वो 1 होगा। अगर 0 से बड़ा तो ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर 0 से छोटा है तो 2 टू द पावर, सपोज यहाँ x की वैल्यू सपोज 2 ले लो, मतलब जो कि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो 2 to 2 is 4 is generally positive और ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। एंड अगर x की वैल्यू नेगेटिव में होगी, सपोज -1 या -2, 2 to -2 कितना होता है यार? 1/4 होगा। तो ये तो हमेशा तो पॉजिटिव हो रहा है। अभी एक चीज सोचो कि x का वैल्यू क्या होने से, x की वैल्यू क्या होने से ये 2 टू द पावर x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सोचो थोड़ा सा, थिंक अबाउट इट। यू कैन नेवर फाइंड ए नंबर लाइक दैट, ओके, यू कैन नेवर फाइंड ए नंबर लाइक दैट, मीन्स there does not exist any value of x such that 2 to the power x is negative, okay, 2 to the 0 तो 1 होता है, 2 to the -5 करोगे तो 1/32, 2 to the power -6 करोगे तो 1/64। तो ये कभी छोटा होगा, कम होगा, लेकिन
नेगेटिव कभी नहीं होगा, नेगेटिव जीरो भी कभी नहीं होगा यार, जीरो भी कभी नहीं होगा ये। 2 टू द कुछ भी करो जीरो नहीं होता है, ठीक है। बस सो सिंपल हमें ये बोल सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स है, ओके, इज इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए ये होता है 1। देन अगर x ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि a टू द x इज ग्रेटर देन 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ओके। एंड a टू द x इज लेस देन 1 इफ x इज लेस देन 0। लेस देन 1 मतलब उतना भी कम नहीं होता, लेस देन 1 मतलब दिस इज लाइज इन बिटवीन 1 एंड 0, and ultimately the ax is always greater than 0, always greater than 0। इसका यही मतलब है कि ये जो लास्ट केस में ax is less than 1 मतलब ये नेगेटिव होता नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव, ओके। ax is positive, a to the x is positive and this ax is equals to greater than 1 if x is greater than 0, 1 if x is equals to 0 and negative less than 1 if x is less than 0। बात इतनी सी है, ठीक है। देन हम इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ऐसे कंपेयर करके हमें थोड़ा सा कुछ नंबर लेके, कुछ एग्जांपल लेके हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज वही एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 to x ले लेते हैं, 3 to the x कोई भी वैल्यू, तो x जब 0 होता है ये 1, सो इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। x 0 होगा तो y कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, 2 to the 0 is 1। उसके बाद यहाँ पे शार्प इंक्रीज होता है, मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो 2 है, x की वैल्यू देखो 1, x जस्ट एक स्टेप चला गया, y भी एक स्टेप चला गया। फिर अगर x की वैल्यू सपोज 2 हुआ, 1 से 2, व्हेन x इज मूविंग टू 1 to 2, ये सीधा 2 से 4 चला गया, 2 से अगर ये 3 जाएगा, ये 4 से चला गया 8, ठीक है। ये सपोज 3 से 4 गया तो ये 8 से सीधा 16। देखो ये एक एक स्टेप जा रहा है, ये डबल डबल होते होते जा रहा है, मतलब ये 2 to the x है, अगर 3 to the power होता तो ये 3 गुना होता जाता, ठीक है। ये सिर्फ डबल डबल हो रहा है, 3 to the x से 3 गुना होता जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन में एक शार्प इंक्रीज दिख रहा है हमें, मतलब शार्प इंक्रीज का यही मतलब है एक ग्राफ ऐसा पूरा शार्प होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, बहुत ऊपर जाएगा। और शार्प मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी e to the x ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश समझो धीरे धीरे। पासिंग थ्रू 0,1, ऑब्वियसली दिस इज 0,1 है, पासिंग थ्रू 0,1, ओके। एंड ऑलवेज तो जनरली इंक्रीजिंग है, यहाँ से ग्रेटर देन 0 में से एक शार्प इंक्रीज होता है, मतलब ये छटाक से, ये पहले धीरे धीरे देखो, पहले सिंपल डबल हुआ, अगर डबल डबल किसी नंबर को करते जाओगे तो पहले थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, बहुत शार्प लंबी लंबी छलांग लेगा ये, पहले धीरे धीरे, उसके बाद लंबी छलांग, मतलब और खतरनाक है ये। और इसकी ये साइड में व्हेन x की वैल्यू, इमेजिन करो कि x की वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो x अगर टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब करीब करीब इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, तो y भी क्या होगा, ए टू इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी। अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, अगर ये बहुत छोटा नंबर मतलब a टू द पावर माइनस इन्फिनिटी y जब है,
एंड ए टू द माइनस 1 बाई ए टू द इन्फिनिटी, दैट इज 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0। 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो ये करीब करीब 0 है, 0 नहीं है यार, ठीक है। ये देखो इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, तो 0 कभी होगा नहीं, ये करीब करीब 0। मतलब x जब बहुत ही छोटा होगा, मतलब बहुत ही लेफ्ट साइड में होगा, तो ये हो जाता है 0। तो इस लाइन को इसी तरीके से ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। और मोस्ट कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे केस में। मोस्ट कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब हम यहीं से ही ड्रॉ कर देते हैं उसको, f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर x। पहले सुने हो गया शायद तुम लोग, e एक करके एक नंबर बहुत सुने हो गए। हाँ, यहाँ पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर x। देखो इसकी डोमेन रेंज तो बताना ही भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ बता देते हैं। आपका डोमेन जो है इसका इस r, सिंपली r, कोई भी नंबर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो रेंज है, रेंज है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो ये कभी 0 हो रहा है नहीं, लेकिन 1 हो रहा है, 0 कभी नहीं होगा जिंदगी में, 0 नहीं होगा ये, क्योंकि a टू द पावर कुछ भी करो ये 0 कभी हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब हम बताए थे 2 की पावर कुछ भी करो ये 0 नहीं होगा ना नेगेटिव होगा। इसलिए रेंज जो है, रेंज जो है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, लेकिन ये ना 0 होता है और इन्फिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट ही होता है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ex, ये एक स्पेशल केस है। ये मतलब इसी केस से ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा, इसका एक केस मान सकते हो तुम। इस केस में भी डोमेन जो है r, डोमेन इज r एंड रेंज इज ऑल्सो सेम, इट इज 0 टू इन्फिनिटी। और क्या है, डोमेन r है, रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। और e की जो वैल्यू है, e इज इन बिटवीन, e इज इन बिटवीन 2 and 3, इसका वैल्यू अराउंड 2.71 समथिंग है। एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इसका एक एक्सपेंशन भी है, ठीक है। एक्सपेंशन की बात बाद में करते हैं, सिर्फ इतना ही समझो कि e एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जैसे पाए होता है। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, बट इट इज काइंड ऑफ इन बिटवीन 2 and 3। The approximate value is approximately 2.71 something. ओके, सो इसकी जो ग्राफ होगा, हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं इसका, वही सेम ग्राफ है, बस 0,1 पे फोकस करना है और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके बढ़ा देना है आगे, ठीक है। बस ये मतलब फ्लैट लाइन है, ये धीरे धीरे एक कर्व है, धीरे धीरे ये इसका करीब होता जाएगा। जैसे is when it is moved left, it is getting closer and closer to x axis, but it cannot touch it। वो जितना चाहो उतना पास जाओ, ठीक, जितना चाहो उतना पास जाओ, लेकिन उसको छूना मत। जितना चाहो उतना पास जाके तुम देख सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट टच इट। सो इसी केस में भी वही सेम प्रोग्राम है। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो 0,1। देखो ये इसी केस में तो वही सेम केस ना यार, ये ग्रेटर देन 1 वाला है, ये सिंपल एक e है विच इज इन बिटवीन 2 and 3। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे 2 की पावर x, 3 की पावर x, इसको नोट करते जाओ, ठीक है, नोट करते जाओ। अगर हम 2 की पावर x, 3 की पावर x और y की इक्वल टू 4 की पावर x, इन तीनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ भी 3 2 केस बनेगा। इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे सो ऑब्वियसली 2 की पावर x इज लेस देन 3 की पावर x इज लेस देन 4 की पावर x।
इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। x 0 होगा तो ये सब कुछ 1 होंगे। इफ x इज लेस देन 0 देन ऑब्वियसली केस उल्टा हो जाता है, 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू चाहे ले लो -2, अगर x की वैल्यू -2 लेंगे तो 2 की पावर -2 कितना होता है 1/4, 3 की पावर -2 1/9, 4 की पावर -2 1/16। ध्यान से देखो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9 इज ग्रेटर देन 1/16। तो सीन यही है, समझ में आया। तो 0 के बाद जो बड़ा है वही लीड करेगा और 0 से पहले जो छोटा है वही लीड करेगा, ठीक है। तो इन तीनों का ग्राफ अगर कॉम्बाइनली ड्रॉ करते हैं, सब 0,1 से पास करेंगे, तो ये y इज इक्वल्स टू अगर 4x का ग्राफ होगा, ये ठीक है यार थोड़ा, ये y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू अगर 2x, ये सब y 4x, अगर 3x की यहाँ थोड़ा सा ऐसे होगा, इस लाइन पे मीट करेंगे और क्रॉस होगा लेकिन थोड़ा सा कम साफ, और ये भी 2x वाला ग्राफ, इस बात को समझो थोड़ा सा, मेरी डायग्राम तो बहुत अच्छी है, ठीक है। फर्स्ट ये 4x, ये 3x, ये 2 की पावर x। देखो इस केस में 4x लीडिंग द वे, 4x सबसे ऊपर है, किसी भी पॉइंट पे 4x ऊपर है, उसके बाद 3x है, उसके बाद 2x है। लेकिन इससे पहले ऊपर में सबसे 2x है, उसके बाद 3x है, उसके बाद 4x है, ठीक है। तो समझो बस यही टाइप का कहानी है। ये 4x, ये 3x, ये 2x, ये बेटर है इस ग्राफ से ये बेटर है, ठीक है। ओके, बस नोट कर लो इसको, फिर सेकंड केस अभी पढ़ेंगे। हियर इज a इज लेस देन 1 एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फर्स्ट केस यही है कि जो f ऑफ x इज इक्वल टू जो a की पावर x से x जितना बढ़ेगा, देखो 1/2, सोचो 1/2 है, इसकी पावर तुम धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ। 1/2 की पावर 1/2 है, 1/2 की पावर 2 1/4 है, 1 की पावर 2 की पावर 3 1/8 है। तो जितना जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज, मतलब पावर जितना बढ़ रहा है, तो उसका जो वैल्यू है उतना घट रहा है। 3 की पावर 1/8, ये 1/4 था, और नीचे खिसक के 1/8 हो गया। अगर पावर 4 कर दो और नीचे खिसक के 1/16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये केस थोड़ा सा दिस इज इक्वल्स टू 1 इफ x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे 1 है, ठीक है। एंड लेस देन 1, बेसिकली लेस देन 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 फॉर x इज लेस देन 0। तो यहीं भी वही सेम बात है यार, ठीक है। ax इज ग्रेटर देन 0 एज ऑलवेज, ये तो ग्रेटर देन 0 तो है ही, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये कितना कमेगा धीरे धीरे, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते, 0 भी कभी नहीं होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। तो दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो it will x in between 0 and 1, in between 0 and 1, ओके। सो अभी इसकी डोमेन रेंज भी वही सेम है, डोमेन रेंज में कोई डिफरेंट नहीं, डोमेन R है और रेंज इज ऑब्वियसली 0 to infinity, ओके। रेंज इज ऑब्वियसली 0 to infinity। इसमें भी थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। इसमें एक ग्राफ है, द मोस्ट कॉमन वन इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर -x। देखो बात यही है कि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है कि a की पावर x, मतलब a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 में बस थिन लाइन डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है,
फर्स्ट केस में देखो a की पावर x मतलब a ग्रेटर देन 0, और नेक्स्ट केस में a की पावर -x, तो a यहाँ भी ग्रेटर देन 0 ही है, a ग्रेटर देन 0 है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि दिस इज 1/a टू द पावर x ना, 1/ax, 1/ax, और वी कैन से दिस इज 1/a टू द पावर x। तो 1a अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1/a लेस देन 0 हो जाएगा नहीं। तो समझे हैं इसकी, मैं जो भी बोलना चाहता हूँ समझो कि a की पावर x माइनस x फॉर a ग्रेटर देन 1 इज नथिंग बट इज सिमिलर एज और एज सेम एज 1/a to the power x which is equals to second case which is f of x equal to a की power x where a is in between 0 and 1। अगर a greater than 1 होगा तो 1/a 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ये मोस्ट कॉमन फंक्शन है, डोमेन लेंथ सेम है, इसका हम सिर्फ ग्राफ देखो। उस केस में जो ग्राफ था इस तरीके का था, यहाँ पे धीरे 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 और फिर शार्प इंक्रीज। यहाँ पे होता है उल्टा। उल्टा क्या होता है, तो पहले होता है शार्प, उसके बाद वो गाढ़ी हो जाता है धीरे, ठीक है। तो इसका ग्राफ है, ये भी 0-1 से जाता है, ये इसका ग्राफ है। फास्ट बहुत डिक्रीज होता है, ये 0 से 1 से, उसके बाद धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है, ये भी कभी छू नहीं पाता है एक्स एक्सिस को। दिस द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a की पावर -x, और वी कैन से दिस इज 1/e टू द पावर x। ओके, तो वही है। सो इसका भी ग्राफ अगर वही सेम है, यार कितना बार ड्रॉ करूँगा, a की पावर -x की जो a की पावर x के ग्राफ पर a इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, इसका जो ग्राफ है वही ग्राफ है, दिस इज पासिंग थ्रू 0,1। समझ गए, ये ग्राफ है e की पावर -x सेम है, बस देखो दिस इज ऑल्सो a इज लेस देन 1 मतलब ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 वाला। अभी थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं इन दोनों के बीच में, कंपैरिजन, जैसे उस केस में किए थे हम कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे, यहाँ भी देते हैं 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x और 1/4 की पावर x। ओके, x अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये लीड करेगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। x इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये सब सेम, इज इक्वल्स टू 1। if x is less than 0 then obviously 1/2 x is less than 1/3 to the x is less than 1/4 की पावर x। ओके, आप ऐसे कंपेयर करके कर सकते हो। ग्राफ में तीनों का कंपैरिजन देखे थे। तो फर्स्ट मिडिल में होता है 3 की पावर x, तो मिडिल वाला ये 3 की पावर x हो गया, उसके वो सॉरी 1/3 टू द पावर x, y इज इक्वल टू है, ठीक है, जगह नहीं है मैं लिख नहीं रहा। देन 1/2 वाला, इस केस में यहाँ 1/2 वाला देखो 1/2 कहाँ है, when x is less than 0, ऊपर में तो 1/4 होगा ऑब्वियसली, तो ये 1/4 इसके ऊपर इसका नीचे जाएगा, और 1/2 कहोगे वो इसका भी नीचे और इस केस में ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ ना थोड़ा बहुत थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा है ग्राफ, लेकिन भावना को समझो। बीच वाला 1/3, ये वाला है 1/3 की पावर x, ये वाला है 1/4 की पावर x,
और ये वाला है 1/2 की पावर x। ठीक है, बस इसको नोट कर लो। हम पढ़ेंगे अभी लॉगरिथमिक फंक्शंस। Let us discuss the logarithmic functions. Function is defined by f of x is equals to log base a x. Log base a x, condition x is greater than 0, x is greater than 0 और a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1। a भी ग्रेटर देन 0 एंड a ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब इसको कहा जाता है ये बेस है, दिस इज योर बेस। ए आपका है बेस एंड बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड दिस बेस इज नॉट इक्वल्स टू 1 हमेशा। ठीक है, सपोज लेट्स से कि a टू द पावर b इज इक्वल्स टू x है, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू x है। इसका मतलब यही है, इसको अगर लॉगरिथम में थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे तो दिस इज log x बेस a इज इक्वल्स टू b। तो आपको पूछा जाता है बेसिकली, सपोज हम पूछेंगे log बेस 2 8 का वैल्यू कितना है, तो आपको यही पता करना है कि जो ये 2 की पावर कितना होने से 8 होगा। ओके, 2 की पावर कितना होने से 8 होगा, तो यहाँ तो पता है 2 की पावर 3 होने से 8 होगा, तो आंसर 3 है। यहाँ भी ऐसे आपको देखना है कि 1 की पावर कितना होने से x होगा, तो यही तुम्हें पता है कि a पावर b होने से x होगा, इसलिए आंसर कितना होगा b। ठीक है, तो यही एक बेसिक है आपका लॉगरिथम फंक्शंस का। अगर डोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं पहले, तो उसके पहले थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि यहाँ भी 2 केस है। फर्स्ट डोमेन रेंज देखते हैं। डोमेन देखो x जो है वो पहले से बोल दिया कि भाई ग्रेटर देन 0 है, तो यहीं से समझ रहोगे तुम डोमेन इज 0 टू इंफिनिटी। x की जो वैल्यू है हमेशा 0 टू इंफिनिटी है और रेंज इज इक्वल्स टू आर डोमेन में। तो नोट कर लो यही बात कि लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर। ओके, log function and ex are inverse to each other, inverse to each other। सो जो भी ex का डोमेन है वो रेंज हो जाएगा और ex का रेंज वो डोमेन हो जाएगा। तो ex का रेंज 0 टू इन्फिनिटी था, तो यहाँ डोमेन 0 टू इन्फिनिटी। ex का डोमेन r था, यहाँ रेंज r है। r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ भी 2 केस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस इज a ग्रेटर देन 1। ओके, a ग्रेटर देन 1 जब होगा, फर्स्ट केस 1 है, दिस इज केस 1, केस 1, दिस इज a ग्रेटर देन 1। तो ये log बेस a x जो है, log बेस a x जो है फॉर ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन a, तो बेसिकली 0 होता है फॉर x इज इक्वल्स टू 1, 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0, ओके, लेस देन 0 फॉर x इज इन बिटवीन। अगर ये कम होगा तो x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0।
ओके, log a x is greater than 0 for x is greater than 1, 0 for x is equals to 1 and less than 0 for x is in between 0 and 1. ओके, for x is in between. इसका ग्राफ देखते हैं, डोमिनेंट तो हो गया ग्राफ। तो ग्राफ जब x 1 से जब देखो दिस इज पासिंग थ्रू 0,1, तो 0,1 ये पॉइंट है, नहीं 1,0 यार 1,0 ये पॉइंट है 1,0। x की वैल्यू 1 ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो 1,0 हुआ ना। ओके 1,0 एंड ये दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का ये मतलब है कि ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर रहेगा, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस है y इज इक्वल टू 0 वाला, ऊपर रहेगा तो ग्रेटर देन 0, नीचे रहेगा तो लेस देन 0। कौन? y, ठीक है। तो इसके तो ग्राफ यहाँ ऊपर यहाँ से नीचे, मतलब बेसिकली दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log x। ये y इज इक्वल्स टू log x का ग्राफ है, समझे? बस फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं। डोमेन डायरेक्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो केस 2 और केस 2 है आपका a इज लेस देन 1 एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। सो y बेसिकली log बेस a x, यहाँ देखो a जो है 1 से नीचे है, इज इक्वल्स टू 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 1, ओके, एंड लेस देन 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 फॉर x इज लेस देन 1। तो इसकी जो ग्राफ है उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये जो 1,0 से पास होता है, लेकिन यहाँ से वो नीचे हो जाता है, यहाँ से ऊपर हो जाता है। मीन्स यहाँ से नीचे होगा और यहाँ से ऊपर होगा। देखो थोड़ा सा मेरा ग्राफ ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ a x, पर a is less than 1 and obviously greater than 0. So this is our case 2. नोट कर लो इसको। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस का। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखो याद आराम से, log बेस a 1 इज इक्वल टू 0 फॉर एनी बेस a, मतलब वही सिंपल a ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एनी बेस a log बेस a 1 इज इक्वल टू 0। क्यों पता है हमें? a की पावर कितना होने से 1 होता है? ऑब्वियसली a की पावर जब 0 होता है दैट इज 1। दैट्स व्हाई log बेस a log 1 बेस a इज इक्वल टू ऑलवेज 0। log 1 इज ऑलवेज 0। ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टीज, log बेस a इज इक्वल टू 1। a की पावर 1 होने से a, so log base a is 1, here also a greater than 0, a not equals to 1, a not equals to 1. The third property हमको log base a xy, log xy is equals to, यहाँ पे देखो log x plus log y होता है, बेस वही से log x plus log y। कंडीशन देखेंगे तो एक्स वाई देखो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए इज ऑब्वियसली वही सेम कंडीशन, ए हमेशा यहाँ ए का कंडीशन लिख देता हूँ ये, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल्स टू 1, ऑलवेज ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1 यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। और कितना हर स्टेप में थोड़ी लिखूंगा बार बार, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। The fourth step, log base a x by y is equals to, देखो प्रोडक्ट होगा तो ये प्लस हो जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है प्रोडक्ट होता है तो प्लस,
अगर इसे डिवीजन होता है तो माइनस हो जाएगा, लॉग बेस ए एक्स का मॉड माइनस लॉग बेस ए वाई का मॉड। यहाँ जो है एक्स बाई वाई शुड ग्रेटर देन 0, एक्स बाई वाई शुड ग्रेटर देन 0। फोर्थ हुआ। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए एक्स टू द पावर n, अगर x की पावर n है सो दिस इज इक्वल्स टू n टाइम्स लॉग बेस ए x का मॉड। जो भी को पावर होता है दैट्स बिकम्स द कोफिशिएंट इन केस ऑफ लॉगरिथम। पावर क्या हो जाता है? कोफिशिएंट हो जाता है। देखो ये वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में भी, ये क्वेश्चन में आया था, ठीक। तो n log ax, दिस इज द प्रॉपर्टीज। और 6, अगर log a की पावर m x टू द पावर n हुआ तो यहाँ भी a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, so a टू द m इज ग्रेटर देन 0 and a टू द m इज नॉट इक्वल्स टू 1, और a ऑल्सो इज इक्वल्स टू x की पावर n नहीं लिखते। तो यहाँ a की पावर जो भी होगा वो डिवाइड हो जाएगा, x की पावर n मल्टीप्लाई होता है और a की पावर जो भी होगा वो डिवाइड हो जाएगा, a की पावर m log बेस a x। ओके, थर्ड सेवेंथ प्रॉपर्टीज, लॉग x को मिक्स कर देंगे, a की पावर n x की पावर n इज इक्वल्स टू, देखो ये होगा डिवाइड और ये होगा मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी n बाई m टाइम्स लॉग बेस a x। यहाँ प्रॉपर्टीज है कि x की पावर n इज ग्रेटर देन 0, यहाँ भी प्रॉपर्टी है x की पावर n ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन से यही कंडीशन है, x की पावर n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, नाउ फॉर वही वाला कंडीशन, फॉर a इज ग्रेटर देन 1 लॉग बेस a x इज इक्वल्स टू, ये तो हम बताए थे आपको शायद, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 0, इज 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0 फॉर x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ओके, 9th प्रॉपर्टी, फॉर a is less than 1 greater than 0 log of ax is equals to less than 0 for x is greater than 1, 0 for x is equals to 1 and greater than 0 and greater than 0 for x is less than 1, obviously greater than 0. Okay, this is the 9th property. And next property, properties number 10 is log base a b is equals to 1 by log base b a। देखो यहाँ log b base a है is equals to log a 1 by log a base b, सॉरी log a base b। अगर यहाँ log b base a है, अगर बेस और इसको अगर इंटरचेंज कर दोगे तो रेसिप्रोकल होता है, और वी कैन से log x y इंटू log y x इज इक्वल्स टू 1। देखो y x लिखा हुआ है, a b लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बेस ऐसे कुछ इंटरचेंज होता है तो दैट इज इक्वल्स टू 1, log y बेस x इंटू log x बेस y इज इक्वल्स टू 1 है। ये सिमिलर है, सिमिलरली ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो बस इतना प्रॉपर्टीज है। सो ये 10 प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सिंपल हाईलाइटेड है, आपको कभी भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट इट। log 1 0 log a 1, और ये वाला प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, ये भी ऑल्सो आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, ये भी यूज़ होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ऊपर वाला 5 प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और ये आपका कॉमन है, मतलब बेसिक है। 8 और 9 वाला प्रॉपर्टी बेसिक, आपको थोड़ा सा एक आइडिया आएगा
कि कहाँ log x ग्रेटर देन 0 होता है, log x लेस देन 0 होता है, कहाँ इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और ये वाला प्रॉपर्टी भी कभी कभार यूज होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास माय स्टूडेंट्स। सो टिल देन इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़े थे इन द लास्ट चैप्टर। इन दिस chapter we are going to discuss their domain, range and property and graph of their trigonometric function. So till then, bye bye, take care, see you in the next class.